फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर के गानों का एल्बम लॉन्च बड़े धूमधाम से किया गया। इस ग्रैंड इवेंट में बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई चमकती हस्तियां मौजूद थीं। फरहान अख्तर अपनी वाइफ शिबानी डांडेकर के साथ नजर आए। इस पावरफुल कपल की केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींच लिया। इंडस्ट्री के महान शायर जावेद अख्तर साहब भी इस मौके पर थे, जिन्होंने फिल्म और संगीत की गहराइयों पर बात की। फिल्म की एक्ट्रेस राशि खन्ना ने अपने स्टनिंग लुक से महफिल में 4 चांद लगा दिए। इनके अलावा फिल्म की पूरी कास्ट और म्यूजिक टीम भी इस खुशी के मौके पर शामिल थी। एक 120 बहादुर के गाने सुनकर लगता है कि ये फिल्म देशभक्ति और जोश से भरपूर होगी। म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट ने वादा किया कि ये एल्बम लिसनर्स को एक बेहतरीन और यादगार म्यूजिकल एक्सपीरियंस देगा। फरहान अख्तर ने इस फिल्म को अपनी दिल के करीब बताया और कहा कि गाने फिल्म की कहानी को नए लेवल पर ले जाएंगे। लॉन्च की ये सफलता बताती है कि ये मूवी और इसका म्यूजिक दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं। First heard the story when I was a kid. My father was in the army, and my brother, when I became a filmmaker, told me the story. And when I heard it, I had to make it. And then I tried to make it for another 5 years. Nothing happened. And then I met these boys, and it happened. Good evening. I think it is a bit delicate, right? When you're trying to up कहानी के जो real है, and you're trying to bring it to a cinematic experience. So I think cinema has its own rhythm, its own structure. So I think it becomes delicate. But then you have such fine writers like Rajiv and Sumit who did the dialogues. And then you have Rezi, the captain of the ship. So I think it's turned out well. I think what we've managed to do is keeping that story authentic, because it was actually a story about their courage, the emotion, about what these 120 gentlemen did when they went into knowing that they were actually walking into their death. So I think it is very delicate, and all of them together have managed to bring it to life and kept it engaging, because the cinema, it has to have an immersive and engaging experience, and I think we managed, and hopefully it will resonate. दोनों ही बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इमेजिनेशन है. I have spent some time with the army people when I intended to, while the Operation Vijay was on, I had gone there. The battle was on, and after 1 year, General Arjun Ray invited me on the first anniversary of Operation Vijay, and Daras, which is the second most
cold, inhabitable place in the world after Siberia. That is where they have made a Shaheed Samarak. And only 2 people addressed the army that day, Arjun Ray and me. And he was kind enough to give me all the facilities to go to different regiments and stay with them for a couple of days and so on. And I discovered that it is another world. We only know army by their uniform. It is a complete culture. It is a complete way of living. They are another people and they are exceptional. There is so much to learn from them. So then I wrote Laksh and again went back to the officers and seniors and got it corrected, the vocabulary, the expression and so on and so forth. So that was a big exposure. But I think every Indian has great respect for Indian Army. It is perhaps, I won't be exaggerating if I say, that today Indian Army is the most respected institution of this country. The most trustworthy. We respect our army, which is a fact. So, I mean, they were kind enough to give me so much time. And then when this offer came for writing lyrics for this, so obviously that experience which I got during Laksh came handy to me. जी जी अब थोड़ा नेपोटिज्म तो होता है नहीं हो सकता है ना. The only one with a shy smile was your son there. It's nepotism in reverse. And I must congratulate Ritesh, the director, Farhan. I've seen the film and I am their worst critic. Generally they are not happy with me. But I must accept that they have made a very good film. मुझे अभी भी याद है एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो अक्सर मिलता है जब गाना खत्म हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग गाना कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटी सी डिमांड आई और जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया कि बिगिनिंग में कुछ ला सकते हैं क्या, कुछ साकी कहते हैं उसे, कुछ शेर, कुछ जज्बा. मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट उन्होंने लाके लिख के सामने दे दिया. फिर मैं वहीं पे खड़े होके गाया. सलीम सुलेमान, आपने भी कहा ना सलीम, तो आप सलीम मेरे को कंसीडर कर सकते हैं. क्या बात है ना. तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि हर गाने का मैं तीसरा किरदार हूं. I'm a third person of every song. भाई पहला किरदार नहीं, आवाज तो आपकी निकलती है सबसे पहले. नहीं, लिखा जाता है फिर उसे बनाया जाता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. होता तो मैं आखिरी किरदार हूं, पर तीसरा कैरेक्टर हूं, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट किरदार हूं. कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, कितना डिजाइन करना उसकी पोइट्री, तब जाके फिर वो हमारी टर्न आती किसी भी सिंगर की जो अच्छा गाते हैं. आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या था? इट्स पावर एंड एनर्जी, और एक रूहदारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती. वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, इट्स ऑन. एंड सो द इमोशन कम्स फ्रॉम विद इन, द पावर ही हैज ऑलरेडी. All we needed was beautiful words which Javed Saab has beautifully written. Of course. And that was it. Good evening. हाँ, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है, जब ऐसी कहानी मिलती है तो there is a fire that gets lit inside the heart, in the mind. I want to first, I mean, this is the release of the music, so I want to firstly just say thank you to Amit, to Salim Suleiman, and to these 3 wonderful boys, Amjad, Nadeem and Amir. You will meet them very, very soon, because they really have captured the mood of the film, of the events in the film. जो जज्बा होता है फिल्म का, जो भावनाएं होते हैं एक सिपाही की, they've captured it very, very well. और मेरा बस ये मानना है यार कि honestly, as a director or as an actor or as producers, you get very, very few opportunities to do something that is way beyond you, that is way bigger than you. Right. You know, I feel very blessed that these opportunities have come
in the last 25 years of making movies have come periodically, you know, in gaps of maybe 3 or 4 years. So I don't want to jinx it. You know, I just want to keep working hard and keep inspiring people like Rezi to make movies, and that when they write scripts like this, you know, that they know that there's somebody out there, you know, who will give his heart and soul to make sure that it's put together, made well. I want to also say lots of love to my entire cast. Most of them that are sitting here, Rashi who's sitting there. Really guys, it was impossible to do this without you all. मतलब जो camaraderie आप देखेंगे पर्दे पे, it's actually there. वो आपको यहाँ पर दिख भी रही है. It was impossible. We are truly a Paltan in the real sense. So thank you very much. यार अभी सुखी बाजी अपनी आवाज में जो भी कहेंगे will capture the essence of anything. जो भी आप कहेंगे. But seriously, I mean, दादा किशन की जय is the battle cry of Charlie Company, who were part of 13 Kumail, and that is praise be to Lord Krishna, right? So that's what it was, and that is the right feeling and the right blessing with which we should start this journey. तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है. हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं, लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का. वो काम किया है जावेद साहब ने, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है धुन की, वो जावेद साहब ने ही दी है. थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए, हमारी एक छोटी सी धुन को इतना खूबसूरत बना दिया. थैंक यू सो मच. I would like to thanks Javed Bhai, Ashish Kaur for giving heart and soul to the song, entire Excel team, Z Music Company. Thank you so much for having us board. Thank you so much. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच. Thank you. जी जावेद भाई. सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब. जब इस गाने की ट्यून और इसके लिरिक्स मैंने सुने, और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी एक जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए, कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ, और इस गाने में भी मैंने वही की. और आप यकीन मानिए, ये मुखड़ा आता है, अब मुखड़े में वो एक हीरोइज्म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए, और हीरो की एंट्री, ये 3 चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए. तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उसमें बेस्ट करना है. तो ये मैंने पूरी कोशिश करी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है. मैंने कोशिश पूरी की है. अब मैं जावेद साहब का चेहरा देख रहा हूँ. फरहान सर, थैंक यू सो मच. मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सच्ची जेन्युइनली बता रहा हूँ. मैं जो भी आपकी फिल्में आती हैं, या मुझे दूसरी बार जुड़ने का आपसे मौका मिल रहा है, वज़ीर में मैंने गाया था उनके लिए, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गाने के ज़रिए दोबारा से आपसे मिलने का, आपके साथ काम करने का, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे. एंड ऑफ कोर्स अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर्स, और बहुत टैलेंटेड है और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं. और कोई भी सिंगर को जब कंपोज़र एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करिए, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही मैं रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना कि ये रखेंगे गान आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूज़िक में आता है. जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोज़र, तो सिंगर ऐसा दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख दे, और मैंने पूरी कोशिश की है. थैंक यू. सो ऑल द वेरी बेस्ट अमजद, नदीम, आमिर, एंड ऑफ कोर्स आशीष. ये हमारा पहला गाना है साथ में जी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और गाने के बारे में
बताने से पहले मैं एक अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब लक्ष्य मूवी आई थी तो मैं एक टीनेजर थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है एक अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत वो एक दिशा मिली थी, एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ अ फुल सर्कल फॉर मी बिकॉज फरहान सर की मूवी थी और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है, एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। Thank you so much for having me on the song Amjad, Nadeem and Amir. Thank you for giving me this opportunity. और बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी, तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी और आज वो मुझे मिल गया है। सो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया है, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है। मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाए, मैं उनको पहली बार देखूंगी। आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और इस गाने को गाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसे आपने कहा कि गाना इबादत है, मेरे लिए इबादत ही है गाना। और कोई भी गाना हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो या वो डांस नंबर हो, मेरे लिए हमेशा इबादत वाला फील ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी दिल से प्यार से मैंने ये गाना गाया है आप सबके दिलों तक पहुँचे और वो इमोशन आपको भी फील हो जब गाने में मुझे फील हुआ। और थैंक यू सर, सच में हमारा पहला गाना है और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे गाने हमारे साथ में आए। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्सेल टीम, थैंक यू फरहान सर, जावेद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ी सी नर्वस हूँ। आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ 120 बहादुर। देखिए, आर्मी वाइफ का होना बहुत, आई मीन टू बी इन दैट रोल इन इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज। और मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि जिस तरह सीन्स लिखे गए हैं, जिस डेप्थ के साथ लिखे गए हैं, every time I was in a scene I got very emotional, and I have to thank Farhan sir for being such a good support. उनके बिना मैं शायद ये नहीं कर पाती, and Rezi sir of course, the captain of our ship. इस फिल्म में बहुत ऐसे सीन हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ मैं इमोशनल हुई, and it did test me as an actor also, and I think I love being part of films that test me as an actor. Coming back to playing an army wife, मैं शब्दों में तो नहीं कह पाऊँगी। I think आपको फिल्म देखनी होगी। आँखों ही आँखों में आप समझ जाएंगे कि उनकी फीलिंग क्या है, और एक अंडर करंट ऑफ लॉस जैसी फीलिंग रही थ्रू आउट, क्योंकि आई थिंक एक आर्मी वाइफ वो समझौता कर लेती है उस सच्चाई से कि her loved one might not come back, you know, and that's a very heavy feeling to live with. तो मैंने पूरी कोशिश करी है to give my best, and I hope आप सभी को पसंद आए। नमस्ते, मैं उजाज खान और मैं इन 120 बहादुरों का कमांडिंग ऑफिसर का किरदार प्ले कर रहा हूँ। हाय, मैं हूँ आशुतोष और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे स्वर्गीय धर्मपाल दाहिया साहब का किरदार निभाने का मौका मिला है। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मंच पर विराजमान जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, बड़े मैं कांप जाता हूँ। फिल्म में तो डायलॉग वाला मसला अलग होता है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि ये मैं मंच शेयर कर रहा हूँ आदरणीय श्री जावेद साहब के साथ में, फरहान अख्तर साहब, पूरी टीम साथ में है। मेरा नाम ब्रजेश करणवाल है और मैंने जयराम काका का किरदार प्ले किया फिल्म में। नमस्कार, मैं अजिंक्य देव और मैं इस फिल्म में ब्रिगेडियर का रोल निभा रहा हूँ। ये फिल्म वाकई में दिल के बहुत करीब रहेगी। बहुत सारी फिल्में हो गई, बहुत होंगी भी, लेकिन ये फिल्म बहुत खास रहेगी बिकॉज ऑफ द वे इट वाज शॉट, बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड, एंड थैंक यू द एंटायर एक्सेल टीम, थैंक यू रेजी, थैंक यू, एंड टू बी हियर ऑन द डायस विद जावेद साहब इज रियली एन ऑनर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय है और मैं जमादार जी का किरदार निभा रहा हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम। थैंक यू। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है देवेंद्र अहिरवार और जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को उसके दोस्त प्यार से बैंगन कह के बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सही बात है। फिक्शन में यह कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफिकेशन तो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा। ट्रूथ हैज नो सच फियर, ट्रूथ कैन बी एज स्ट्रेंज एज पॉसिबल बिकॉज इट रिमेन्स ट्रूथ। ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता। ये कहानी इतनी अजीब है कि द ओनली रीजन यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज रियली ट्रू। ये राइटर नहीं लिख सकते थे कहानी, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी के पास तो कहते ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, तुम क्या लिख के लाए हो, मगर ये सच है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे एंड व्हेन यू विल गो टुवर्ड देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो इनका कैरेक्टर है, अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ था, और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया। इट्स अनबिलीवेबल। The only reason that you have to believe it under the sun is that